اچھا جی، تو مدیحہ یہ بتائیں سب سے بڑا خواب ایک شہری کا کھانے پینے کے بعد، روزگار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھی تعلیم کے، یہ کہ آپ کی چھت اپنی ہو، اچھی تربیت کے بعد، ہاں اچھی تربیت کے بعد کہ آپ کی چھت اپنی ہو، ہاں جی، جس میں آپ کو ماہانہ کرائے کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، جہاں پر آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بھلے کیسا بھی ہو، گھر چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر گھر ہوتا ہے اور وہ آپ کو بڑا سکون دیتا ہے۔ بالکل جی، اور وزیر اعظم عمران خان نے 50 لاکھ گھر بنانے کے انتخابی نعرے کی تکمیل کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھی تھی۔ اس منصوبے کے تحت کم آمدن افراد کے لیے 5 یا پھر 10 مرلے کا اپنا گھر بنانا ممکن ہے، جس کے لیے حکومت کی جانب سے 3 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی اور بینکوں سے 30 لاکھ روپے تک قرض حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض دینے والے بینک یا کسی ایسے فرد کو قرض دیں گے جس کی حیثیت قسطوں میں قرض یا رقم ادا کرنے کی نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت بڑا سوال نشان ہے۔ یا تو آپ کی نوکری اچھی ہو، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی پے اسکیل کیا ہے، ٹھیک ہے، اونلی دین جو ہے وہ بینک سے آپ جی اپنے اس گھر کے لیے لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں نا، کلیریفائی کر لیتے ہیں، کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ عاصم شوکت صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ترجمان ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے۔ بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کم آمدنی والے طبقے کی بات کی گئی ہے، تو یہ کتنی آمدن ہوگی کسی کی تو وہ اس کیٹیگری میں لائی کرتا ہے، کم آمدن والے میں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدیحہ اور اشفاق آپ کا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے، یہاں سے جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک جانی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ کسی کا بھی یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا گھر اپنا ہو، اور جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ غریب آدمی جو تاحیات کسی کے گھر کا کرایہ دیتا رہتا ہے، اس کو ایسی اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ ایک معینہ مدت کے لیے اپنے گھر کی ایک ساتھ دے اور پھر تاحیات اپنے گھر میں مالکانہ حقوق انجوائے کرے۔ تو دس واز دا بیسک کانسیپٹ۔ اب جو تمام سسٹم ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اس کو 4 ٹیئرز میں ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹیئر 0، ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3۔ ہم ٹیئر 1 پہ بات کرتے ہیں، جہاں لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹس جو ہے وہ بنا کر دیے جائیں گے۔ ایک تو اس میں کیٹیگری ہے اربن یونٹس، جو شہروں میں آپ کی میجر سٹیز ہیں، وہاں کے اوپر جو گھر بنائے جائیں گے، ان کی ہم نے اپر سیلنگ رکھی ہے تقریباً 30 لاکھ روپے۔ اس وقت لاہور ایل ڈی اے اپارٹمنٹس میں جو گھر بنائے جا رہے ہیں وہ 27 لاکھ کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ 5 مرلے پر مشتمل ہوں گے، ایک کمپلیٹ یونٹ ہوگا اور تمام ایمنسٹیز جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ وہاں پر پہنچائی جائیں گی۔ دوسری بات، ہر گھر کے اوپر حکومت پاکستان جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کی کاسٹ سبسڈی دے گی۔ اس کے بعد جب آپ کو گھر الاٹ ہو جاتا ہے، گھر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ بینک کو قسطیں دینا شروع کریں گے اور اس کے اندر بھی مارک اپ سبسڈی پہ آپ قسط واپس کریں گے۔ فار ایگزامپل سبسڈائزڈ مارک اپ کے اوپر آپ قسط واپس کریں گے، پہلے 5 سال کے لیے 3% اور دوسرے 5 سال کے لیے صرف 5%۔ جی تو عاصم، کیا بینک جو اس بات پہ راضی ہوں گے؟ کیونکہ یہاں لوگوں کی شکایت کو سامنے آ رہی ہے کہ بینک یہاں پہ راضی نہیں ہے تاحیات اپنی جو قسطیں ہیں واپس لینے میں، تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا مدیحہ، تاحیات قسطیں واپس نہیں ہوں گی، قسطوں کے لیے 4-5 وہ دیے گئے ہیں۔ یا تو آپ 5 سال کا پلان لے لیں اف یو آر کمفرٹیبل، یا پھر آپ 10 سال کا پلان لے لیں، 15 سال کا اور 20 سال کا۔ 20 سال تک آپ پلان لے سکتے ہیں۔ میں وہی آپ کو بتا رہا تھا، اگر آپ 5 سال کا پلان لیتے ہیں تو آپ کو 3% مارک اپ کے اوپر قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ 10 سال کا پلان لیتے ہیں تو اگلے 5 سال آپ کو 5% پہ قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سبسڈائزڈ مارک اپ ہے اور یہ سبسڈی حکومت پاکستان دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 35 ارب روپے کی مارک اپ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ چلیں، دس از گریٹ، لیکن یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے گا، ایک تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، کم آمدن کی ڈیفینیشن کیا ہے جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ کم آمدن والا شخص ہے اس کے لیے سب سے جو چھوٹا گھر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اپارٹمنٹ ہے، گھر ہے، اس کی ماہانہ قسط کتنی بنتی ہے؟ یہ 2 چیزیں ذرا جی بالکل جی بالکل ٹھیک ہے، یہ 2 آپ نے بڑے ویلڈ کوشچن کیے۔ پہلی چیز تو یہ، ایز آف ناؤ اس وقت ہم جن لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں ان کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ 30 سے 50 ہزار کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ انکم گروپ ہے جو معاشرے میں کچھ نہ کچھ ارن ضرور کر رہے ہیں لیکن بالکل باٹم اس میں لیول پہ لائے کرتے ہیں۔ 5 6 7 8 ہزار روپے باٹم والے تو وہ 20,000 والے نہیں جن کی گورنمنٹ نے 20,000 اب تک تنخواہ مقرر کی ہے، if I'm not wrong۔
अच्छा मैं हाँ वो टियर 0 है उसके ऊपर भी आते हैं, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे लूं। ये बात आपकी ठीक है। अब ये वो लोग हैं जिनको लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट गवर्नमेंट बना के दे रही है, ठीक है। ये 30 से 50 हजार तक ये लोग, इनकी माहाना आमदन है और इनको ये फैसिलिटी दी जा रही है। अच्छा। अब दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था कि किस्त पर महीने कितनी बनेगी अब इनकी 30 से 50 वालों की? अच्छा अगेन ये देखें ना, ये 10,000 से भी कम इसकी किस्त बनती है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल किस्त है। अगर आप अब टियर 0 में आ जाएं तो टियर 0 में तो मजीद इसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हमने। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इंक्लूड किया है, जिसके अंदर खुशहाली बैंक है, अखुवत है। ये इन लोगों का कमाल। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मैं जाहिर हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे, आपने कहा कि 10,000 की किस्त बनती है, मुझे ये बताएं कि ये टियर 1 जो है 30 से 50 हजार वाले में, इसमें एक शख्स को कितना कर्जा आप दे सकते हैं? कितनी मालियत का कर्ज उसमें हो सकता है? अच्छा, उसके अंदर जो आपको बैंक्स हैं जो कर्जा दे रहे हैं वो तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख तक आपको कर्जा जो है, हाँ 27 लाख एग्जैक्ट है, उतना आपको कर्जा मिलेगा। और 27 लाख में वो घर अपना खुद बनाएंगे? नहीं मैं आपको थोड़ा कंप्लीट करूं। इसके अंदर आपको जिस वक्त घर अलॉट होता है 27 लाख का 10% आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, 2,70,000 रुपए। ठीक है। मजीद इसमें से 3 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देती है। ठीक है। बकिया जो 21-22 लाख रुपए है वो आप एक साथ की सूरत में अपने घर में शिफ्ट होने के बाद वापस करना शुरू करते हैं। सही। ठीक है। और आजकल के दौर में 5 मरले का घर आपको 27 लाख में भी 3 लाख की सब्सिडी 23-24 लाख रुपए में मिल जाता है, जिसमें तमाम जरूरियात जिंदगी पूरी होती हैं। आसिम शौकत साहब, तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक घर की प्राइस कितनी है अगर हमसे वैसे बात करें, क्योंकि ये 5 और 10 मरले का घर है, तो अगर हम 5 मरले की घर की बात करें तो इसकी ओवरऑल प्राइस वैसे क्या है? अच्छा मदीहा, मैं फिर क्लियर करूं, थोड़ा सा चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं टियर 1 लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स जो कि नेफ्डा बनाकर लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर प्रोविंशियल अथॉरिटीज भी हैं, जो एलडीए है या आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो भी घर बना रही हैं। इसके अंदर प्राइवेट बिल्डर्स को भी इनवाइट किया गया है कि वो आएं और हमारे इश्तराक के साथ सस्ता घर बना के लोगों को दें। अभी जो आप बात कर रही हैं ना, वो टियर 2 और टियर 3 है। अच्छा। जिसमें आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो सैलरीड क्लास से हैं या कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो अर्न करते हैं, बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लमसम अमाउंट कि वो अपना घर बना लें। फॉर एग्जांपल, मैं जल्दी बताऊं कि अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं या कोई 5 मरले का फ्लैट खरीदना चाहते हैं कहीं भी, तो जो टियर 2 में आपको 60 लाख तक कर्जा मिलेगा। पहले 5 साल 5% मार्कअप के ऊपर। अच्छा। और दूसरे 5 साल 10% 7% मार्कअप के ऊपर, जबकि मार्केट में ये रेट 12 से 13% है। इसी तरह अगर आप 10 मरले का अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले 5 साल 7% मार्कअप पे 1 करोड़ तक का कर्जा मिल सकता है, 10 मिलियन। और दूसरे 5 साल 7% पे। आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर बनाएं। अच्छा, और मुल्क में ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन समझ आ गया। लेकिन इसके अंदर who would be the deciding authority? नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या फिर बैंक्स? क्या हाँ जी इसको कर्ज देना है, मदिया को देना है या अशफाक को देना है या नहीं देना? अच्छा, 2 इसमें चीजें हैं। जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट है उसके अंदर तो मेंबर्स अप्लाई करते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के पास। अच्छा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है एक फिल्ट्रेशन का एक लंबा प्रोसीजर है। हम चाहते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को पहले घर मिले। अच्छा। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट है वो बैंकेबल डिक्लेयर होता है, फिर बैंक उनको कर्जा देता है। जो टियर 2 और टियर 3 है, जिसके अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अप्लाई करती है, वो बैंक को अप्लाई करते हैं। बैंक ने इस चीज को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है या फॉर्म है और उसके बाद बैंक आपको असेस करता है। सही। अच्छा, एक और मदिया ने एक क्वेश्चन किया था। जी प्लीज सर कंटिन्यू करें। अच्छा जी, मदिया आपने एक क्वेश्चन किया था कि बैंक गरीब आदमी को क्यों कर्जा देगा। ये एक बड़ा सर, ये गरीब आदमी आके मैं बता रहे बड़े मसले हैं। टियर 0 की बात करें सर, टियर 0 की बात कर लें। उनको कैसे कर्ज मिलेगा? अच्छा चलें टियर 0 की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। टियर 0 में 1-2 मसले आ रहे थे। एक तो टियर 0 में लोग बेचारों के का सरमाया बहुत कम होता है, बैंक अकाउंट से नहीं होते, जो भी कमाते हैं वो एग्जैक्टली इशफाक, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। वो बेचारे कुछ ना कुछ तो कमा रहे होते हैं लेकिन वो बैंकेबल नहीं होते, या दे डोंट नॉट नो हाउ टू डील विद बैंक। अब देखें ना, कोई आपका डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मैकेनिक है, कोई सब्जी फरोश है, कोई परचून फरोश है, वो बेचारे हर माह कुछ ना कुछ तो कमा लेते हैं। उसके लिए 2-3 चीजें की गई हैं। एक तो बैंक्स ने प्रॉक्सीज और एसेंट सिस्टम डिवाइस किया है। यानी अगर आप कोई बिल दे रहे हैं
यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं तो उनसे असेसमेंट की जा सकती है, अगर आप अपने बच्चों की स्कूलों की फी दे रहे हैं तो उससे असेसमेंट की जा सकती है, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और रेगुलरली उसका किराया दे रहे हैं तो उससे असेसमेंट की जाती है। अच्छा सर, और क्विकली एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अब तक कितने लोगों का अपना और सस्ते घर का जो ख्वाब है ये पूरा हो चुका है? कोई स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आया है? शहर के अंदर पूरा हुआ है या शहर से बाहर पूरा हुआ है? अच्छा चलें, फिर आप वैलिड क्वेश्चन है लेकिन इसको वन बाय वन लेते हैं। अच्छा, शहर के अंदर और शहर के बाहर का मैं जवाब दे दूं। 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तो अर्बन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5 मरले का घर तकरीबन 27 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, जो बना के हम देंगे। दूसरा, पंजाब हुकूमत के फिलहाल ताउन से हमने एक पेरी अर्बन प्रोजेक्ट यहीं पर है जो शहरी इलाकों के नवाही इलाके हैं। सर अभी फिलहाल शहरी इलाकों पे जरा बात कर लें, मैं जरा कराची की बात मैं बस सिर्फ कंप्लीट कर लूं, जो शहरी इलाकों के नवाही इलाके हैं वहां 3.5 मरले का घर बनाया जा रहा है, सिंगल स्टोरी है, और वो मजीद उसकी कीमत कम कर दी गई है, सिर्फ 18 लाख रुपए में लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएं, जो हम टियर 0 की बात कर रहे थे, आपने कहा टियर 0 में जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके अंदर निहायत ही मिनिमल सिर्फ सर्विस चार्जेस पे बिला सूद कर्जा रखा गया है लोगों के लिए, 2% सर्विस चार्जेस पे, कि वो जहां कहीं भी जितनी उनकी पहुंच है, जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक 2-4 लाख से लेके 20 लाख तक 2% सर्विस चार्जेस पे बिला सूद कर्जा लेकर अपना घर बना सकते हैं। इसके लिए हमने माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को इन्वॉल्व किया है क्योंकि I appreciate the effort. Actually, we appreciate the efforts के जो whatever the government is doing for the poor. लेकिन जरा मुझे ये समझाएं कि शहर कायद की बात कर लेते हैं, कराची की सोहराब गोट स्कीम 33 की बात करें, अच्छा गार्डन की बात कर लें, नॉर्थ नाज़माबाद की बात कर लें, अच्छा उसके अलावा जो है वो खारादर की बात कर लें, यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, ये तमाम तर इलाके हैं, बाकी डिफेंस और क्लिफ्टन को छोड़ ही दें। यहाँ पर जो इन इलाकों में मिडिल क्लास लोगों की अक्सरियत रहती है, मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि 30 लाख रुपए में घर मिल सके? यहाँ पर तो कुछ गज जमीन ना मिले, ये इतने में घर कैसे बन सके? अच्छा देखें, हाँ बिल्कुल, जो नैफडा है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से यही डील करता है कि जो जमीन है वो सब्सिडाइज्ड होती है, जो जमीन है वो स्टेट लैंड होती है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आप देखें ना कि 10,000 रुपए मरला जमीन दी जा रही है पेरी अर्बन के लिए, जो पंजाब हुकूमत में पेरी अर्बन है उसमें 10,000 रुपए मरला। इसी तरह सिंध हुकूमत जो है अगर वो जमीन प्रोवाइड करती है और उसके अंदर बिल्डर्स आते हैं, अगर सस्ता जो घर बन जी दैट इज द पॉइंट। अभी तक उनका इंटरेस्ट नजर आया वैसे आपको सिंध गवर्नमेंट का या बैंकों का? अभी देखें बैंक्स तो जो हैं वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बैंक्स हैं जहां जहां नैफडा जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट जो है वो शुरू कर देगा, वहां वहां बैंक्स कर्जा दे देंगे। इसी तरह जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं। आसिफ साहब once again मैं वापस से अपने जो सवाल की तरफ आऊंगी कि अब तक कितने लोगों का ख्वाब पूरा हो चुका है? हाँ, बेसिक बड़ा अच्छा देखें, इस वक्त तक हमें तकरीबन 205 बिलियन रुपीस की रिक्वेस्ट आ चुकी है और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 78 बिलियन रुपीस 78 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ हाउसिंग के लिए अप्रूव हो चुके हैं। अच्छा। और जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस है इट इज स्टिल कंटिन्यूड। नंबर 2, आप ये देखें कि स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को डायरेक्ट किया था कि वो अपनी पब्लिक लेंडिंग का 5% जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तस कर दें, और वो बनता है तकरीबन 378 बिलियन रुपीस पर एनम, यानी 378 अरब रुपए की मुल्क में सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। अभी तक तमाम मुल्क में तकरीबन 5,000 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है, जिसके नतीजे में 9 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। अच्छा आसिम साहब, एक और चीज बताइएगा था जी, 78 अरब रुपए जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जी अपना। अच्छा एक आखिरी चीज सर कि ये जो बैंक जो है वो ज़ाहिर है एक बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, और अगर वो वैसे किसी को फर्ज करे कर्ज दे रहे हैं और इसमें 12-13% पे दे रहे हैं, और इस स्कीम के तहत 3 से 5% पे वो कर्ज उनको देना पड़ रहा है, तो वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे ये करने में? अच्छा इशफाक, बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे आपने 1 से 1.5 मिनट देना है इसको थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करने में। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, आज से पहले बैंक तो गरीब आदमी को कर्जा देता ही नहीं था, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। बैंक या तो अपने मुलाजमीन को कर्जा देता था या फिर अमीर लोगों को कर्जा देता था, और ये बड़ा जस्टिफाइड है। बैंक, जैसा आपने कहा, एक बिजनेस मॉडल है, बैंक को अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सो आपका पहला सवाल था कि बैंक क्यों 2 से 3% सब्सिडी के मार्कअप के ऊपर कर्जा देगा। अच्छा इशफाक, बैंक नहीं कर्जा दे रहा 2 से 3% पे, बैंक अपना कर्जा 11 से 12% पे दे रहा है। हुकूमत इस मार्कअप के ऊपर सब्सिडी दे रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ मार्कअप पे दे रही है। बैंक
کو تو صرف بزنس مل رہا ہے, بینک اپنا قرضہ 11-12% مارکیٹ ریٹ پہ دے رہا ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے اس مارک اپ کے اوپر, یعنی کہ جو انٹرسٹ ہے آف کورس وہ نمبر 2 حکومت ادا کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. نمبر 2, بینک کیوں ریلیکٹنٹ تھے؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں فورکلوجر لا جو تھے وہ بڑے انفیکٹو تھے. لوگ قرضہ لے لیتے تھے, گھر بنا لیتے تھے, جب واپس کرنے کی باری آتی تھی تو عدالتوں میں سٹے لے لیتے تھے. اب جو ہے حکومت پاکستان نے اور نیفڈا نے فورکلوجر لا کو بہت افیکٹو بنایا ہے. اب آپ کو 14 دن چلیں سر, ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں پورے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو. بہت شکریہ جی, عاصم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.